Hello everyone, welcome to Nowhere on YouTube. So this YouTube channel is completely dedicated to explain tech related topic which is not yet explained on YouTube. So we have started a series on NPM, that is a package manager, and today we are going to discuss about npm dependencies. So you must have seen many lots of package.json having lots of different types of dependencies. So majorly we have like three types of dependencies. One is the direct dependencies, another is dev dependencies, and the last one is peer dependency. There are other also, but mostly we will be discussing about these normal dependencies, dev dependencies, and peer dependencies. What are the difference between them, and we will summarize it in the later one. So mostly you all know a normal dependency, like what is the use of this dependency. So basically, to whatever the packages you need to run your application. So like your application like may be independent of any packages, but in most of the real use case scenario, your application depend on lots of packages, such as like you might be need Express. For any backend development, you might need a framework called Express. So you have to install this. So what is the main thing is ki, okay, you know the dependency, whatever the package required to run your application. Okay. Then what is dev dependency and what's the difference between dependencies and dev dependencies? So dependencies are required to run your application. Okay, on the production you can say, or anywhere. So while running the application you uses Express. Okay, and the another is dev dependency. You do not use dev dependency in running your application. So what does this mean? You need dev dependency during the development of your application. So like what are the example? So we can say ki like jest. You must be familiar with jest. Jest is a package used for unit testing, and anything related to testing, can be unit or integration testing. So you don't need jest to run your application, you just need to run your test. Or TypeScript, you might have used TypeScript also if you are a Node.js developer. So TypeScript only we use during the development of your application or during the compile time, not while executing your code or running the application. Or anything related to types is should be put inside dev dependency. Dev dependencies represent ki this is the dependencies which we need during the development. Okay, this is the simple difference between the dependency and dev dependency. So from the next time when you have to decide कि either I have to put any package in dependency or dev dependency, you have to think of one thing कि do you need this package during the runtime, during the execution of this uh, execution of your application, your code, or do you need this only for the development? So if you need for only for the development time, not on the production, you put it in the dev dependency. And the last one, if you are here till now, please wait for some time, because everyone most of the users know dependency and dev dependency but don't know peer dependency. But it's better to know. If you want to be a good developer, you should know what is peer dependency also. Okay, so let's keep your focus here and let's discuss about peer dependency and how it is different from डिपेंडेंसी है डेव डिपेंडेंसी. सो पीयर डिपेंडेंसीज क्या होता है कि वैसा डिपेंडेंसीज जो तुमको चाहिए ड्यूरिंग द रन टाइम, बट तुम फोर्स नहीं करते हो कि तुम इंस्टॉल करो. मतलब तुमको करना है, बट यूजर का जो डेवलपर होगा, जो तुम्हारा पैकेज यूज कर रहा होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई वो कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहता है. बस तुम एक गाइड दे देते हो कि भाई हमें ये वर्जन चाहिए पैकेजेस का, ये पैकेज चाहिए और इसका वर्जन ये चाहिए. जैसे एग्जांपल में तुम देख सकते हो कि कोई एक पैकेज है जो पीयर जिसका पीयर डिपेंडेंसी है रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट. सो रिएक्ट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18.2.0, और टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन जो होना चाहिए वो 5.0.0 से ज़्यादा होना चाहिए. सो अगर तुमको जैसे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर कोई ऐसा पैकेज तुम बना रहे हो, रिएक्ट का कोई पैकेज बना रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा रिएक्ट का पैकेज लेट से रिएक्ट 16 पे काम कर रहा है या रिएक्ट 16 या उससे ज़्यादा पे काम कर रहा है, तो वही एप्लीकेशन तुम्हारा पैकेज इंस्टॉल कर सकता है जो 16 या उसके ऊपर से काम कर रहा हो. तो तुमको पीयर डिपेंडेंसीज में डिफाइन करना पड़ेगा कि रिएक्ट का जो होना चाहिए पैकेज वो ग्रेटर देन 16.x. तो ये बताता है कि भाई तुम्हारा जो वर्जन होना चाहिए, जो भी
डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन में तुम्हारा पैकेज यूज करेगा उसका रिएक्ट वर्जन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16.x होना चाहिए। ठीक है। हम्म, अब इसमें क्या होता है, ऐसे समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, तुम लोग को बताते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक हमने पैकेज बनाया था। तो हमने पैकेज बनाया था मोबाइल प्रोसेस वेलकम। तो ये पैकेज अभी तुम देख सकते हो कि इसमें पीयर डिपेंडेंसीज डिफाइन है 17.x। ओके। तो जो भी इसको यूज करेगा, ठीक है, जो भी इस पैकेज को यूज करेगा नोवेयर न्यूटो स्लैश वेलकम को, उसको रिएक्ट का 17.x का वर्जन ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ और यूज करेगा तो एरर आएगा। ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम्म, हम लोग सी डी डॉट प्रोजेक्ट बना लेते हैं डेप्स एक्सप्लेन। ओके। तो इसमें हम लोग npm init करते हैं। तो इसमें हमारा पैकेज डॉट जेसन आ गया। अब लेट से अगर हम इसमें ऐड करते हैं कि भाई डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं, किसका, तो नो वेयर ऑन यूट्यूब स्लैश वेलकम। 1.0.5 ये 1.0.5। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुम npm आई करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा ये पैकेज तो इंस्टॉल होगा ही, ठीक है। उसके अलावा ये जिस जिस पैकेज पे डिपेंडेंट है वो भी इंस्टॉल होगा। तो क्या पीयर डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगा? तो npm का जो भी 7 वर्जन के बाद है, अभी जो मेरे पास npm का वर्जन है वो 10.9.0 है। तो npm का 7 वर्जन के बाद 7 ऑनवर्ड्स उसमें क्या होता है कि जो पीयर डिपेंडेंसीज होते हैं वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं डायरेक्टली। तो एक बार देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है। तो तुम यहाँ पे आए, npm आई किए, ठीक है, चीज़ क्लोज कर देते हैं। डेप्स एक्सप्लेन में है, इसमें तुम npm आई करते हो। तो ये बेसिकली तुमको नोवेयर और यूट्यूब स्लैश वेलकम इंस्टॉल करके देगा और उसका पैकेज भी इंस्टॉल करके देगा। तो यहाँ पे जब इसका नोड मॉड्यूल्स देखेगा तो यहाँ पे नोवेयर और यूट्यूब है, साथ में और भी सारा चीज़ है जो हुआ है, उसमें से एक रिएक्ट भी है। ठीक है। और रिएक्ट का कौन सा वर्जन है? इसका पैकेज डॉट जेसन देखोगे तो 17 पॉइंट समथिंग है। ठीक है। क्यों है 17 पॉइंट समथिंग? क्योंकि हमने ये डिफाइन करा था कि भाई 17 पॉइंट समथिंग होना चाहिए पीयर डिपेंडेंसी। बट हमने बात करा था कि पीयर डिपेंडेंसी जो होती है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होती है, लेकिन ये तब तक होता था npm 7 तक। तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं पुराने वर्जन के साथ। अभी इसको डिलीट करते हैं। सो जो भी नोड 12 के पहले npm आता था, नोड नोड 12 वगैरह में जो npm था वो npm 6 था। ठीक है। तो अभी हम npm का यूज करके नोड 12 पे स्विच कर रहे हैं। ठीक है। अगर npm नहीं पता है तो बताओ, हम npm पे वीडियो बना सकते हैं, इससे तुम इजीली नोड का किसी भी वर्जन पे स्विच हो जाते हो। तो अभी ये बोल रहा है कि नाउ यूजिंग नोड 12 एंड npm वर्जन 6। ओके। तो अब npm का तुम वर्जन 6 यूज कर रहा है, नहीं विश्वास है, npm डैश भी npm का 6 वर्जन यूज कर रहा है। अगर तुम अब npm आई करोगे, ठीक है, क्या होगा? ये इंस्टॉल करेगा पैकेज। ठीक है। एक ही पैकेज इंस्टॉल किया इस बार, सिर्फ नो वेयर ऑन यूट्यूब, और वार्निंग दिया कि भाई नो वेयर ऑन यूट्यूब हो गया है लेकिन ये रिक्वायर्स पीयर रिएक्ट 17.x बट नॉन इज इंस्टॉल, यू मस्ट इंस्टॉल द पीयर डिपेंडेंसी योरसेल्फ। तो तुमको भाई इसको रन करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था पीयर डिपेंडेंसी। ठीक है। इसको तुम बहुत ही अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक इस डॉक्यूमेंटेशन में चीट सीट टाइप का दिए हैं कि भाई या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे तुम ये दे सकते हो जिससे होता है कि भाई तुम 17 पॉइंट कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, या 4.x यानी कि 4 के ऊपर जितने भी उसका माइनर वर्जन है वो सारा, सिर्फ मेजर वर्जन डिफाइन करते हो तुम। ठीक है। तुम और ऑपरेटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो कि भाई या तो 16 या फिर 17 कोई भी दे दो, और कई बार तुम ऑप्शनल भी डिफाइन कर देते हो। तो ये सारा सिंटेक्स चलता है। ठीक है। तो ये था बेसिकली पीयर डिपेंडेंसीज। ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, और तीनों को भाई इंस्टॉल करने का क्या है, तो नॉर्मल तुमको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, जैसे एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करना है। ठीक है। इससे तुम क्या होगा कि डिपेंडेंसीज के अंदर में वो जा करके, ओके, पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे एक्सप्रेस तुम्हारा ऐड हो गया। ठीक है। सिमिलरली तुम अगर कुछ भी इंस्टॉल करते हो, npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट
डैश डैश सेव डेव। तो ये बेसिकली तुमको इंस्टॉल करेगा डेव डिपेंडेंसी के अंदर। और अगर तुम डैश डैश सेव पीयर करोगे तो पीयर डिपेंडेंसी के अंदर। ये बेसिकली हम लोग लोअर वर्जन ऑफ एनपीएम यूज़ कर रहे हैं तो दिक्कत आ रहा है। एनपीएम यूज़ 20 करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली तुमको डेव डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड करके दे देगा। ओके, लास्ट समराइज कर लेते हैं कि भाई डिपेंडेंसी जो होता है जब एनपीएम इंस्टॉल करते हो तो वो इंस्टॉल हो जाता है। डेव डिपेंडेंसी नहीं होता है। पीयर डिपेंडेंसी एनपीएम 7 के बाद होने लगता है, ठीक है। ये नॉर्मल डिपेंडेंसी के अंदर होता है, ये डेव डिपेंडेंसी के अंदर, ये पीयर डिपेंडेंसी के अंदर। एग्जांपल प्रोजेक्ट काफ़ी समझा दिए। और यूज केसेस तुम्हारा क्या है, ये एसेंशियली प्रोडक्शन में जब रन होता है तो ये होता है, या लोकली तुम कोड को जब एग्जीक्यूट करते हो ये डेवलपमेंट के टाइम में यूज होता है और ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बट वर्जन इसका फिक्स नहीं रहता है, तो तुम बस तुमको गाइड करता है कि कौन सा वर्जन तुम्हारे लिए कंपेटेबल होगा, ठीक है। तो ये मोस्टली कंपेटेबिलिटी के लिए रहता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि डेव डिपेंडेंसीज के अंदर टाइपस्क्रिप्ट आ चुका है। सिमिलरली तुम npm इंस्टॉल सेफ पीयर करोगे तो तुम्हारा पीयर डिपेंडेंसीज के अंदर ये चला जाएगा। सो दैट्स ऑल आज के वीडियो के लिए। तुमको कहीं पे सजेशन लगता है तो तुम बता सकते हो कि भाई क्या चीज़ पे वीडियो बनाए, फीडबैक दे सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो था तो। और लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।